Okay, so what we have learned in the last chapter means okay, what we have learned in the last period, that is a knockout tournament, round robin tournament, combination tournament, challenge tournament. These 4 tournaments are there, and how to play in a knockout tournament. So we will see in there. जो हमने देखा था कि भाई कैसे खेलना है वहां पे, हाउ टू मेक अ फिक्सर, तो हमने वो भी देखा था कि सपोज 11 टीम्स आर देयर, सो हाउ मेनी राउंड विल बी देयर? Karmesh, you know, if 11 teams are there, so how many rounds are there? How many matches are there? सर 5 जितनी बोले। No, n-1 था ना, 5 थोड़ी होंगे। n-1, that means n number of team -1, that means 10 matches are there. Okay, and we have to bifurcate them into the two parts, upper half and lower half. ठीक है, two half, upper half and lower half. For upper half, that is particular formula is there. Then lower half is also formula. So we have to bifurcate them into the formula, by the formula. वो फॉर्मूला के हिसाब से हमें उनको बाइफरकेट करना है कि भाई अपर में हाउ मेनी टीम्स आर इन अपर हाफ एंड हाउ मेनी टीम्स आर इन लोअर हाफ. ठीक है, तो n+1/2, so that means 11 + 1/2 means 12/2 is equal to 6. So 6 teams are in a upper half and 5 rest of the teams are in a lower half. ठीक है, और इसी हिसाब से फिर 22 जो हमने देखे थे कि 22 कैसे देने हैं उनको, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है वहां पर nb-1/2 और nb+/2. ठीक है, तो उस हिसाब से भी वहां पे फॉर्मूला करके हम वो उनको 22 दे सकते हैं. 22 कैसे देना है कि नेक्स्ट पावर ऑफ 2, विच इज द नेक्स्ट पावर ऑफ 2, that means our number of team are 11. So which is the next power of 2? Karmesh, Smith, Ujef, Haley, 16. Good. It's a 16. Next power of 2 is a 16. 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64. That means you have to continue with them. तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 जो आता है दैट माइनस टीम, तो these are the 22. Okay, 16 - 11 is equal to 5. Only 5 are 22. तो और 22 को भी हमें कैसे बाइफरकेट करना था वो भी हमने सिखाया था कि nb-1/2 और nb+1/2. तो ठीक है, हमें जो अपर हाफ में जो थे वो 2 बाय देने थे, लोअर हाफ में हमने 3 22 देनी थी. तो हमने वो 22 भी दी थी उस टाइम. कैसे 22 देनी थी? ठीक है, जैसे अपर हाफ एंड लोअर हाफ. सो फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट गिवन टू द बाय फर्स्ट टीम. लास्ट जो लोअर हाफ इनटू द लास्ट टीम is given to a first buy. Second buy is given to the upper half in a first team. Okay, then a third buy is given to the lower half in a first team. Okay, lower half in a first team, and fourth buy is given to the first half in a last team. Okay, then fifth buy. So where we have to given the fifth buy. तो 5वां बाइज हम कहां पे देंगे? तो सेकंड हाफ के अंदर सेकंड लास्ट जो टीम है उसको हम फिफ्थ बाय देंगे. ओके, वी हैव टू गिवन फिफ्थ बाय टू द सेकंड लास्ट टीम इन अ लोअर हाफ. अंडरस्टैंड? वैसे ही हमें बाइज कंटिन्यूस करते रहना है कि किस हिसाब से बाइज उनको देने हैं. ठीक है, फिर नंबर ऑफ राउंड्स थे. हाउ मेनी राउंड्स आर देयर? ठीक है, तो हाउ मेनी राउंड्स आर देयर? Only 4 rounds are there. So how we know the how many rounds are there? So we have to count. No, 2 to the 4 to the 8 to the 16. Where we have to come at a last power of means next power of 2. That is the number of round. Understand? 2 to the 4 to the 8 to the 16.
our total teams are only 11 and next power of 2 is a 16. So 4 rounds are there and 10 matches are there. Okay, so next point था हमारा के objective means intramural. So what is the meaning of intramural? Intra means within and murals means walls. So intramural means within the walls. We have to play in within the walls or in a school area only, not outside of the school. Only we have to play in a school area, in a school compound. That is the intramural. Okay, another thing is significance of intramural. This program also lays stress on moral, ethical values of the student. Intramurals are necessary for the development of health of children. These are the significance. Then after we have to learn objective of intramurals. In the first point is there. First point was there to provide opportunity to every student to participate in games and sports. So what is the meaning of that? Every students are participated in these games or particular sports. Second point is to develop leadership quality among students. So what? Leadership among the students. So you have to chance to leader your leadership among the students or on your team also. Third point is to develop cooperation. To develop cooperation. Cooperation means whenever we have to play games or sports, so we have to cooperate to all the students. In a last session, we know with the example, our Karmesh said that which two players are there in a Chak De India, Karmesh? Preeti and Komal. Preeti and Komal. So they are fight for their egos. So they are not cooperate to each and every players. So what happened? The team will be lose. So you have to cooperate each other. Then our team will be won. Means will be win. तो क्या हो सकता है कि अगर हम कोऑपरेट करें तो विन हो सकते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड रिक्रिएशन. Intramural is provide us to what? Recreation, enjoyment and all the things what we have to learn from there. Next topic तो सो हमारा आज से शुरू होता है. नेक्स्ट जो है टॉपिक टू डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप. ठीक है. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मीन्स क्या है? व्हाट इज द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? So you have to, whenever you have to play any sports or game, you have to play at that time with rules and regulation properly. No any excuse or all that things are there. So you have to play with sportsman spirit. ये एक ऐसी चीज है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के आपको काफी आगे तक ले जाता है. वो क्या है कि भाई हम जब भी गेम्स खेलते हैं, whenever we have to play, so sometimes what happen, we have to fight with to the players or sometimes with the officials also. कि भाई ऑफिशियल्स ने कई बार मिस्टेक्स छोटी सी हो जाती है तो भी हम सामने उनको बोलने जाते हैं. ठीक है. तो वो हमें उतना नहीं करना है वहां पे कि भाई वो लोग वहां पे लड़ते झगड़ते रहे. हमें वहां पे ऐसा कुछ करना नहीं है. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है. हमें कोई चीटिंग नहीं करनी है, या कोई टीम चीटिंग करती है तो उनको भी हमें अच्छे से समझाना है. तो वो क्या है? एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है. ऐसे ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर हम फॉर द एग्जांपल देखें तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की वर्ल्ड कप की मैच थी जिसके अंदर कटली वॉल्स या एम्ब्रोज जो था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हम बोल सकते जो था एम्ब्रोज ही था शायद. तो वो बाउंड्री के ऊपर था और जो वॉल्स जो है शायद बॉलिंग कर रहा था या ऐसा कुछ था. तो उसमें ऐसा था कि जो प्लेयर्स जो है वो जो रनअप लेता है उसी टाइम जो नॉन स्ट्राइकर है वो निकल के बाहर चला जाता है और पाकिस्तान को जीत के लिए थोड़े ही रन चाहिए होते हैं. तो उसमें क्या है, जो बॉलर जो है वो उनको पकड़ के जब बॉलिंग डालने जाता है तो वो क्रीज से बाहर चला जाता है नॉन स्ट्राइक से. तो वो उसको पकड़ के अंदर लाता है कि भाई तू अंदर आ जा, नहीं तो मैं आउट कर दूंगा और आप लोग हार जाओगे. लेकिन उसमें क्या हुआ, जब फिर बॉल डाला तो सामने वाले बैट्समैन जो स्ट्राइक पे बैट्समैन था
उसने अच्छे से शॉट मार के वो वहां पे वो मैच जीत गए थे। उस टाइम ऐसा हुआ था कि पूरा स्टेडियम जो उसके बाद जब मैच खत्म हो गई तब जो वो प्लेयर था उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अवार्ड दिया गया था। और जो कमेंटेटर था उसने ऐसे भी कमेंट की थी वहां पे, जो पूरा स्टेडियम था उसको ऑनर देने के लिए वो सभी खड़े हो गए थे वहां पे। उसने सबने क्लैपिंग भी वहां पर की थी कि भाई इसने अपनी टीम को मींस जिताने के लिए ऐसी चीटिंग, चीटिंग मींस के वो कर सकते हैं लेकिन उसने नहीं किया, वॉर्न करना पड़ता है तो उसने वॉर्न करके वापस बुलाया अंदर, लेकिन वो हार गए वहां पे। तो उसमें क्या है, नेक्स्ट टाइम वो वहां पे उन लोगों को, ये जो प्लेयर था वेस्ट इंडीज का, उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अवार्ड भी मिला। और वहां पे कमेंट भी हुई थी कि अभी ना तो ये कभी हुआ था और ना ही इन फ्यूचर कभी ये होगा, हिस्ट्री में ऐसा कोई जो है वो कभी नहीं होगा। तो वहां पर ऐसी भी कमेंट हुई थी, तो उसको वहां पे इस तरह से अच्छे से अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी अवार्ड वहां पे उनको मिला था। तो हमें भी जैसे सपोज ओनली नॉट ओनली इन द स्पोर्ट, this sportsman spirit also include in your life also. It is very beneficial to your life or whenever you have to go. तो कहीं पर भी आप जाते हैं या आपकी लाइफ के अंदर ये पॉइंट उतारना हमें जरूरी है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ वेराइटी ऑफ गेम्स एंड स्किल्स। तो हमें क्या है, टू प्रोवाइड अ अपॉर्चुनिटी टू लर्न variety of games and skills. So what we have to get, more games and skills we have to learn from the intramural. Okay, whenever we have to play in an intramural, you have to play lots of games are there. Suppose you have to play kabaddi, football, volleyball, basketball, cricket. So you have to play most of games or skills are in the intramural. Sometimes what happen, you don't know some skills but your opponent do their skills and you have to see that, so then after you have to also learn that skill. So वहां से क्या होता है, हमें भी वो देखते हैं और हम वो स्किल वहां पे देखते हैं और उससे हमें क्या होता है कि नहीं भाई ये स्किल हमें भी सीखनी चाहिए कि भाई ये जो उसने किया था टेक्निक या जो भी है वो हमें वहां पे सीखने को मिलता है, गेम्स जो है वो सीखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन। व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम द इंट्राम्यूलर टू ऑर्गेनाइज अ कॉम्पिटिशन। ओके, तो जो हमारी कंपटीशन जो है वो वहां पे हम सीख सकते हैं। तो सभी कंपटीशन जब वहां पे चलती रहती है तो उससे क्या होता है, वहां पर हम सब कुछ सीखते हैं। ठीक है, हाउ टू ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन एंड यू हैव टू लर्न आल्सो another activities are there. Suppose whenever teachers day are there, so you have to arrange the all that things for the teachers and also the farewell. Whenever you are in a 11th standard, at that time you have to arrange that program farewell. तो आपको वहां पर पता चलता है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज, कि हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है कोई प्रोग्राम या कैसे हम कर सकेंगे। तो ये प्रोग्राम जो है आपको वहां पे सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। वहां पे आपको जब जैसे मैं पहले बोला था कि अगर हमें कोई कंपटीशन करवानी है, कोई स्पोर्ट्स करवाना है बड़ा या कोई इवेंट करवानी है, तो बिफोर इवेंट वी हैव टू प्लान फॉर दिस इवेंट और एक्टिविटी और स्पोर्ट्स। ओके, so we have to make lots of committees for that, so we are not in a trouble at the time of event or sports or activity. तो उस टाइम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि भाई एक्टिविटी है या स्पोर्ट्स है, जो भी हमें करना है उस टाइम अच्छे से हम कर पाते हैं। तो उससे भी हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है कि भाई इंट्राम्यूरल जब है तो उससे हमें सीखने के लिए मिलता है कि हमें कौन सी एक्टिविटी कैसे करवानी है, कौन सा स्पोर्ट्स हमें कैसे करवाना है, वो सब कुछ हम वहां पे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन और इवेंट और व्हाट एवर यू वांट टू डू। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन।
So how we can identify the talented sport person or students? So whenever we organize any intramural or any games or sports are going on, so we have to stand there and see the students. Okay, so how do they play and how they are include their skills and all that thing, कि वो लोग वहां पे कैसे खेलते हैं, अपनी स्किल्स और जो है वो कैसे वहां पे शो करते हैं. तो वहां से हमें पता चलता है कि भाई ये लोग अच्छे से, इन लोगों ने यहाँ पे ये गेम्स थी तो खेला, कि अच्छे से स्किल वहां पे दिखाई. सपोज हम समझ लेते कि भाई कबड्डी की गेम है, तो कबड्डी जब खेलते हैं तब हम आजू बाजू में ही खड़े होते हैं और देखते हैं, सभी स्टूडेंट्स भी खड़े होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, कोच होते हैं, सब कुछ होते हैं. तो वो लोग देखते हैं कि कैसे वो प्लेयर्स खेल रहा है, कितनी टैक्टिक्स यूज कर रहा है, कितनी टेक्निक यूज कर रहा है, कैसे खेल रहा है, कितना सपोर्टिव है, कितना कोऑपरेटिव है, वो सब कुछ वो लोग देखते हैं और उनको पता चलता है कि हाँ, कि भाई इसके अंदर अच्छा सा स्पोर्ट्स का टैलेंट है और वो वहां से अच्छे से उसको सिखा सकता है. मीन्स उनको पसंद कर सकता है कि हाँ भाई ये जो बॉयज है, ये प्लेयर्स जो है पर्टिकुलर गेम्स के अंदर अच्छा है, तो वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकेगा, अच्छे से खेल पाएगा वो. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप पर्सनालिटी. तो हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी बाय स्पोर्ट्स. whenever you play any sports or game, your body will be fit and fine. If you are play every day any game, or you should do exercise at your home, so your body will be fit and fine and your appearance will be also good. ठीक है, कि भाई अगर हम देख ले या कोई अच्छे से जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एक्टर है, कि भाई उनका अपीयरेंस और वो कैसा होता है, कि भाई हाउ टू डेवलप, उनकी पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है. ठीक है, कि भाई हम जो हमारा जो बिजनेस है या जो वहाँ पे हम जॉब करते हैं या कहीं पर भी है, तो वहां पर जब हम जाते हैं तो सभी लोग हमें देखते हैं कि भाई हाँ ये ऐसे ऐसे, हाँ ये है वो है, इसकी पर्सनालिटी कैसे है. कई बार हम सब किसी को देख के बोल देते कि अरे भाई इसकी पर्सनालिटी कैसी है. ठीक है, तो वो कैसे पता चलती है कि भाई वो स्पोर्ट्स जितना अच्छा खेलता है, जितनी अच्छी एक्सरसाइज करता है, जितनी एक्टिविटियां करता है अच्छे से, उसकी बॉडी जो है वो एकदम फिट और एकदम अच्छे से हेल्दी रहती है और अच्छे से वो रहते हैं, फिट रहते हैं. जिससे क्या होता है कि भाई उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता. उनका अपीयरेंस जो उनको हम देख के ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ भाई कि इन लोगों का ये देखो कैसी पर्सनालिटी है, कि कैसे चल रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं. ठीक है, आप लोगों को देख के ही पता चल जाता है कि भाई इतनी अच्छी इसकी पर्सनालिटी है. तो ये जो थे ऑब्जेक्टिव्स थे इंट्राम्यूरल्स के, कि भाई इंट्राम्यूरल्स से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या हम सीख सकते हैं, कितना हम उससे बेनिफिट उठा सकते हैं, ये सभी पॉइंट हमने देखे इसके अंदर. तो नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटीज फॉर इंट्राम्यूरल कंपटीशन. सो एक्टिविटीज, हाउ मेनी एक्टिविटीज आर इंक्लूड इन इंट्राम्यूरल, where we have to play these games. You know what is the meaning of intramural? We have to play within the walls, within the compound, in the school playground. That is the call intramural. ठीक है, and that is the main, what is the main thing of intramural? You have to cooperate to other, you have to you develop your brotherhood also. You have to meet all the students, all the players, to all the classes are there, so you have to play together. तो वहां पे क्या होता है कि हम सब साथ में खेलते हैं, उससे क्या होता है कि भाईचारा बढ़ता है, कोऑपरेशन एक दूसरे से बढ़ता है, एक दूसरे से पहचान होती है. कई बार होता है कि भाई हम किसी को जानते नहीं होते, किसी की पर्सनालिटी जानते नहीं होते, या किसी के अंदर जो छुपा हुआ है उसका क्या बोलते हैं कि उसके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है. ठीक है, वो टैलेंट वहां पर बाहर आता है. कई बार कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे हमें लगते नहीं है कि ये इतना अच्छा खेलता होगा या ये इतनी अच्छी स्पीच देता होगा, लेकिन हमें कब पता चलता है कि ड्यूरिंग इंट्राम्यूरल के वो लोग खेलते हैं, जब उसकी टीम में वो खेलता है और सबसे अच्छा खेलता है, तब जाके पता चलता है अरे वाह ये प्लेयर्स तो इतना अच्छा है, अभी तक कहाँ था भाई, तू खेल नहीं रहा था, ये है वो है.
लेकिन उस टाइम पे हमें पता चलता है कि भी ये प्लेयर्स के अंदर इतनी इतनी क्वालिटीज है, इतना टैलेंट है, वो सब कुछ वहां पे हमें दिखाई देता है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई हाँ ये प्लेयर्स अच्छा है, इसके अंदर ये क्वालिटीज और सब कुछ है। तो उसके अंदर का देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच मे बी इंक्लूड इन इंटरम्यूडिएट कॉम्पिटिशंस। द एक्टिविटीज, ये बार बार बाहर क्यों निकल जाते सब? Intramurals should be selected very carefully. Mainly, the selection of activities should be based on two factors: interest of students and availability of facilities in the institution or school. तो क्या है, डिपेंड ऑन कि भाई उनके अंदर कितना इंटरेस्ट है और डिपेंड ऑन फैसिलिटीज। तो हम उस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं कि भाई इतनी फैसिलिटीज है या इतना हमारे पास वेन्यू, मींस के जो वेन्यू है वहां पे इतनी जो ग्राउंड है, ग्राउंड में इतनी ही स्पेस है, तो हम उस हिसाब से गेम्स करवा सकते हैं। उस हिसाब से हम जो कोई भी एक्टिविटी है वहां पे कर सकते हैं, तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगा, स्टूडेंट्स को वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वहां पर वो गेम्स और वो सब हो सकता है, तो वो अच्छे से खेलेंगे। वहां पर भी उनको पता चलता है कि हमें इतनी स्पेस है तो उस हिसाब से कैसे खेलना है, सब कुछ वहां पे वो लोग खेलते हैं। ठीक है, वी शुड नॉट फॉरगेट द रिक्रिएशनल एस्पेक्ट ऑफ इंट्राम्यूरल्स। ऑल द इंट्राम्यूरल्स एक्टिविटी मस्ट प्रोवाइड रिक्रिएशन टू द स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंट्राम्यूरल? टू provide a recreation to everyone, to enjoy the student in a intramurals। तो वहां पे क्या करेंगे, मैक्सिमम वो रिक्रिएशन वहां पे दे आर गेटिंग द रिक्रिएशन, तो वहां पे उनको एंजॉयमेंट मिलेगा, रिक्रिएशन मिलेगा, और अच्छे से वो लोग वहां पे परफॉर्मेंस देंगे और वहां पे खेलेंगे और एकदम एंजॉय करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि इंट्राम्यूरल में कैसे खेलते थे, कैसे आप लोग एंजॉय लेते थे। ठीक है, तो उसके लिए जो है मेजर गेम जो है इंट्राम्यूरल के लिए, हाउ मेनी गेम्स आर इन इंट्राम्यूरल और हाउ मेनी वी गेम्स वी प्लेड देयर। okay, we play there. So in a 4-5 categories are there. One is a major game. In a major game there are more games like a basketball, football, volleyball, hockey, cricket, kabaddi, swimming, athletics, cycling, wrestling, lawn tennis, football, softball, badminton, etc. These all activities are included in a major game. ठीक है, ये क्या है, जो मेजर गेम्स है उसके अंदर इंक्लूड है ये गेम्स। नेक्स्ट है हमारा माइनर गेम्स। तो माइनर गेम्स के अंदर क्या करवा सकते हैं, शटल रन, खो खो, सर्कल गेम्स, टैप गेम्स, रोलर स्केटिंग, पोटैटो रेस, सैक रेस, 3 लेग रेस, एटसेट्रा। तो ये जो है वो माइनर गेम है। और रिथमिक गेम, इसके अंदर रिथमिक गेम भी होती है, जो आप लोगों ने देखी होगी शायद, कि भाई लेजिम है, डम्बेल्स है, मार्चिंग है, फोक डांस है, सोलो डांस, मास पीटी, रिदमिक, जिम्नास्टिक, एटसेट्रा। दिस एक्टिविटीज आर रिदमिक और कोऑर्डिनेटिव और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी, इसको भी हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो है विथ कोऑर्डिनेशन हम खेल सकते हैं। विथ ये कोऑर्डिनेशन के साथ हमें करना होता है, म्यूजिक के साथ करना होता है, अच्छे से ढंग से ताल मिला के वो एक्सरसाइज या वो एक्टिविटी वहां पे करने की होती है। फिर नेक्स्ट है क्रिएटिव एक्टिविटीज, पेंटिंग, ड्राइंग, फिर है मेकिंग मॉडल्स। फिफ्थ है हमारा कॉम्बेटिव एक्टिविटीज, बॉक्सिंग, जूडो, टेक्वांडो, कराटे। कॉम्बेटिव एक्टिविटीज मीन्स क्या है कि भाई ये फाइटिंग, वन टाइप ऑफ फाइटिंग एक्टिविटीज है। फाइटिंग मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो है स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स पर्सन है, दे आर प्ले दिस एक्टिविटीज, कॉम्बेटिव एक्टिविटीज। तो उनको क्या है, वहां पे अच्छे से वो परफॉर्मेंस दे सकेंगे, अच्छे से वहां पे खेल सकेंगे। तो वहां पे कौन सा है कि जूडो, बॉक्सिंग, टेक्वांडो सभी वहां पे, कराटे और इसी सब एक्टिविटी वहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल्स। ठीक है, इंट्राम्यूरल का मीनिंग हमने समझ लिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा एक्स्ट्रा म्यूरल्स। तो भाई एक्स्ट्रा म्यूरल्स में कैसे होगा? The word extramural is derived from the Latin word extra and muralis.
extra means outside and murals means wall. That means what we have to play outside of the school or outside of the school wall. Okay, or we have to play outside of the school playground, or we have to go and participate in a yeah, suppose district level competition, state level competition. That are the extramurals. Okay, so it means that the activities which are performed outside the walls of an institution or a school. It points toward the activities that are organized by an institution or school, and also the students of 2 or more school participate. तो उसमें क्या है कि जो एक्स्ट्रा म्यूरल हो रही है उसके अंदर मैक्सिमम मोर देन 2 और 3 प्लेयर्स होते हैं, मैक्सिमम मोर देन 2 और 3 स्कूल्स होते हैं. तो ये जो खेलते हैं वो मिलके जहाँ पे खेलते हैं तो उसको वन टाइप ऑफ एक एक्स्ट्रा म्यूरल्स हम कह सकते हैं. In fact, the extramurals competition, the students of other school also participate in sports related activities. Extramurals also extramural competition are also called inter-school competition. Extramurals are fixed well in advance so that the students of other schools may prepare well for such competition. तो इसके लिए है क्या है भाई, एक्स्ट्राम्यूरल जो है कि उसके लिए प्री प्लानिंग होता है, क्योंकि वहां पे सभी स्कूल्स वाले खेलने आते हैं, सभी बच्चे सभी प्लेयर्स वहां पे खेलने आते हैं. तो उससे क्या होता है कि प्री प्लानिंग करके रखना पड़ता है. जैसे हमने आगे पढ़ा कि भी कोई भी बड़ी कंपटीशन है या कोई कंपटीशन करवाने हम जा रहे हैं तो उसके लिए हमें प्री प्लानिंग करना होता है कि जिससे एट द टाइम ऑफ टूर्नामेंट वी आर नॉट इन अ ट्रबल. ओके, वी आर नॉट इन एनी प्रॉब्लम. तो हमें वो एडवांस में प्रिपेयर करना है जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से हम कर सके. तो उसके अंदर क्या है कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल कंपटीशन. तो इंट्राम्यूरल कंपटीशन आर सिग्निफिकेंट इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन बिकॉज विदाउट एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन द प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिमेन इनकम्प्लीट. तो क्या है कि ये प्रोग्राम पूरा जो एक्स्ट्राम्यूरल है वो इनकम्प्लीट रहता है. किससे? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्कूल टू शो दैट स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज. तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा भाई? to provide opportunities to school so that sports capabilities. तो उससे क्या होता है, different schools are participated in their competition. तो उससे क्या कर सकते हैं कि भाई हमें वहां पे पता चलता है कि वहां पे जितनी भी स्कूल्स और वो सब आए हैं वो वहां पे उनका परफॉर्मेंस दिखाएंगे, वो उनकी वहां पे कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेबिलिटी उनके अंदर है, वहां पे वो लोग दिखाने वाले हैं. ठीक है, वो जो है उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो वहां पे हमें कैसे दिखाई देगी कि भाई जब भी उनकी गेम्स होगी, उनका स्पोर्ट्स वहां पे खेलेंगे, तब वो लोग कैसे खेलते हैं, कैसे मिलजुल के खेलते हैं, कैसे वो प्लानिंग करके खेलते हैं गेम्स के अंदर, टेक्निक कितनी यूज करते हैं, टैक्टिक कितनी यूज करते हैं. उस हिसाब से हमें पता चलता है कि ये अपना जो अंदर जो छुपा है, जो उनके अंदर टैलेंट है, वो सब वहां पे वो बाहर निकालेंगे. तो वो जितनी भी कैपेसिटी है स्कूल की मीन्स उनके बच्चों के अंदर, वो वहां पे हमें पता चलेगी. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस थ्रू एक्स्ट्राम्यूरल. हाउ वी एनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस? whenever we go for play we have to see there ke the players are came from the different places and they are playing a very well game in a very good with good skills. तो क्या है कि वो लोग अच्छे से स्किल के साथ खेलते हैं. तो वहां पे हमें पता चलता है कि भाई वहां पे हमें देख के पता चलता है कि इन बच्चों ने इस हिसाब से, इन प्लेयर्स ने ये गेम्स के अंदर इतनी अच्छी सी टेक्निक यूज की थी, इतनी अच्छी टैक्टिक स्किल वहां पे उन लोगों ने यूज की थी. तो वहां पे हम देखते हैं और वहां से जब वापस आते हैं हम, जब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो उस टाइम हमें भी वो स्किल वो टेक्निक वहां पे यूज करते हैं. और वो टेक्निक स्किल यूज करके नेक्स्ट टाइम जब हम जाते हैं उसके अंदर अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करके जब जाते हैं तो हमें जीतने के चांसेस वहां पे रहते हैं. और हमारा परफॉर्मेंस है उसके अंदर भी मीन एनहेंस द परफॉर्मेंस. तो हम वो हमारा परफॉर्मेंस भी वहां पे बढ़ा सकते हैं वो एक्टिविटी के अंदर, वो स्किल्स के अंदर. प्रोवाइड एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक्स. तो एक्स्ट्राम्यूरल्स के क्या होगा, जैसे मैंने सपोज समझाया आपको, जब हम बाहर खेलने जाते हैं
तो लॉट्स ऑफ प्लेयर्स वहां पे खेलने आते हैं, अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं, अलग अलग टैक्टिक यूज करते हैं वो लोग। तो उससे क्या होता है कि अच्छे से वो लोग वहां पे खेलते हैं, जीतते हैं। तो हमें वहां पे पता चलता है कि भाई ये यहाँ पे इतना अच्छा खेले और इतनी अच्छी स्किल उन्होंने दिखाई वहां पे। और फिर क्या होता है कि भाई वो अपना जो वहां पे अच्छे से नए जो रूल्स और रेगुलेशन आते हैं उनके हिसाब से भी वो खेलते हैं। तो वो क्या है, अवेयर होते हैं नए रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से, जो आपको बहुत ही हेल्प करता है खेलने के लिए। कि कई बार हमें कोई रूल्स पता नहीं होता तो हम गड़बड़ कर बैठते हैं और हम पॉइंट गंवा बैठते हैं। लेकिन उन लोगों को पता होता है तो वो लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके आते हैं, अच्छे से रूल्स और रेगुलेशन जानते हैं, तो वो लोग वहां पे परफॉर्मेंस भी अच्छा देंगे। जिससे क्या होगा कि उनके अंदर भी, एक्स्ट्रा म्यूरल्स में जो खेलने गए हैं उनके अंदर भी एक नॉलेज एनहेंस मींस नॉलेज उनको प्रोवाइड होगा, नॉलेज उनके अंदर बढ़ेगा। नेक्स्ट टाइम वो अच्छे से वहां पर भी खेलने जा सकते हैं कि भाई वो हाँ पर्टिकुलर इस गेम के अंदर ये सभी जो रूल्स रेगुलेशन जो नए आए हैं वो भी उनको पता चल जाते हैं और वहां पे अच्छे से वो फिर परफॉर्मेंस वो दिखा देते हैं। Plan and implement the programs of physical education more effective. तो क्या है कि भाई एक्स्ट्रा म्यूरल्स आर एसेंशियल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन more effective. Extramurals also help in broadening the base of sports. तो इससे क्या है कि भाई हमें प्लान और इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एक्स्ट्रा म्यूरल्स से क्या है कि आप अच्छे से प्लान कर सको, कोई भी एक्टिविटी आपको करवानी है तो वहां पे आप अच्छे से प्लान करो, उसको अच्छे से वहां पे करके वो एक्टिविटी वहां पे करनी है। जिससे क्या होता है कि भाई एट द टाइम जो स्पोर्ट्स वहां होने वाले हैं वो स्पोर्ट्स में हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से वो गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वहां पे कंटिन्यूज रहे। तो इससे फिजिकल एजुकेशन में क्या मोर इफेक्टिव हो सकता है कि भाई वहां पे हमें क्या क्या दिक्कतें आई थी। अगर सपोज हमने कोई गेम्स वहां पे स्पोर्ट्स या ऑर्गेनाइज किया है तो हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे इतना इतना प्रॉब्लम हुआ था, इस हिसाब से ये ग्राउंड्स में प्रॉब्लम था, या ऑफिशियल्स के अंदर प्रॉब्लम था, या प्लेयर्स को रहने के लिए प्रॉब्लम था। तो ये सभी कुछ हमें वहां पे देखने से पता चलता है और नेक्स्ट टाइम जो है हम अच्छे से वहां पे एडवांस में प्लान कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंटिंग कर सकते हैं और अच्छा सा वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा कि भाई improve the opportunities to participate in sports। ठीक है, तो extramural competitions provide opportunities to the students of various schools to participate in sports. Many schools that usually do not take part in such competitions are motivated, and consequently such schools tend to participate in extramurals. So sometimes what happen, all the schools are not participated in extramurals. So whenever we organize extramurals, means that any competitions or any games, at that time what happen ke some school students are appreciate from these games. So they have to decide it by next time we will also participate in this game. तो स्कूल वाले भी सोचते हैं कि भाई ये अच्छी सी इतनी कंपटीशन हुई थी यहाँ पे, ऐसे स्पोर्ट्स की कंपटीशन होती रहती है, तो भाई हमारे स्कूल के बच्चे भी वहां पे पार्टिसिपेट करें। तो ये क्या है, वन टाइप ऑफ एक मोटिवेशन मिलता है उनको। क्या होता है कि भाई पार्टिसिपेट करने के लिए उनको मोटिवेशन मिलता है। क्यों कि भाई ये जैसे वहां पे कंपटीशन हुई, वहां पे प्राइज होती है, वहां पे उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं, वहां पे उनको मेडल्स दिए जाते हैं। तो ये सब जो देते हैं वहां पे, तो उससे क्या होता है कि भाई दूसरों को भी देख के क्या होता है, दूसरे लोगों को भी देख के वहां पे अप्रिशिएट होते हैं उनसे कि अरे वाह, ये लोग यहाँ पे खेलने गए थे, यहाँ पे ऐसे जीते, तो उन लोगों को सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और ये सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, ये सब कुछ उन लोगों को मिला है। तो नेक्स्ट टाइम हम भी पार्टिसिपेट करें, नेक्स्ट टाइम हमें भी अच्छे से अपॉर्चुनिटीज मिले। वहां पे क्या एक्स्ट्रामुरल के सबको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर समटाइम्स कोई लोग नहीं जाते हैं वहां पे, पार्टिसिपेट नहीं हो पाते।
कोई रीजन होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो वो नहीं कर सकते। लेकिन नेक्स्ट टाइम उनको क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है वन टाइप ऑफ एक कि भाई हाँ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें ये बेनिफिट यहाँ पे होने वाले हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का लेक्चर जो है उसके अंदर हमने क्या सीखा है कि पहले से के ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राम्यूरल्स था जिसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स हमने देखे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था, टू डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ वैरायटी ऑफ गेम्स। तो ये बहुत सारी स्किल्स है जो 9 ऑब्जेक्टिव्स है उसके अंदर सीखे। फिर हमने एक्टिविटीज फॉर इंट्राम्यूरल कंपटीशन के अंदर कौन सी एक्टिविटीज थी, जो माइनर गेम्स थी, मेजर गेम थी। ठीक है, फिर रिदमिक गेम्स थी, क्रिएटिव एक्टिविटी है, कॉम्बेटिव एक्टिविटीज थी, वो हमने देखा। फिर उसके सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल्स कंपटीशन के हमने देखे, भाई उसके अंदर कितने पॉइंट थे, तो हमने 5 पॉइंट थे वो देखे। तो उसके बाद हमें जो अभी नेक्स्ट जो है लेक्चर उसके अंदर हम नया स्टार्ट करेंगे। तो आज के